नमस्कार, एनडीटीवी नेटवर्क पर आपका स्वागत है। ये महा कवरेज हम आपके लिए लेके आए हैं क्योंकि क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल होने वाला है। ये रोमांचक मुकाबला अहमदाबाद में खेला जा रहा है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी भी हैं, ओसामा है और रिका भी है। Thank you very much, Baba. Well, it will be 100 overs to immortality. Whether it will be India or Australia, we will have to wait and see at the end of the night. Well, it is the Kangaroos facing on the Indian Tigers at the Narendra Modi Stadium a little while from now. Well, it means the culmination of all that we have been waiting for from 5th of October. These are the two best teams in the tournament taking on each other. Absolutely. It's not just the two best teams taking on each other in the final. It is also a build-up, a making in the making to the last final that we played against Australia, the 2003 final. And it didn't really turn out the way India would have wanted it to. But this time around, India going into the match are the favourites, and that is the kind of confidence that this team has. They have been unbeaten so far, 10 out of 10, and it does look like it is a complete unit. And it does look like a complete unit in the house as well. We have our guests and friends who are here to watch the match with us. Joining us on the broadcast, Gurcharan Singh, former India cricketer. We have Sabak Karim, former India cricketer. We have Santosh Ji, who also runs an academy in Ghaziabad. We have Salam Balak Trust. We also have Mohammad Shahid Saab, who's a UPCA umpire. We have our favorite, I will say favorite because he always pulls my leg if I don't, Vijay Daya, former India cricketer. And he is trying to be a neutral. He's come in a pink jacket today. No, we can't let anyone be neutral in this panel at this in this match, Rika. And I appreciate Sabah you being in the India blazer. Yes. Yes. बस भी इंट्रोड्यूस कर दीजिए। Cheer for India. Yes, absolutely. कोच भी हैं। We also have Mohammad Shami's coach, Badruddin Saab. We also have Vishali, she's an India A player. We also have our friends from academies, from different Salam Balak Trust. We also have our in-house fan, Gauri Datta Gupta, who's here to give us her gyan on what this match is going to be. She'll share her experiences of being at the Eden Gardens. Yes. Yeah. Eden Garden गई थी गौरी, वो अपना भी बताएंगे अनुभव। And over the next 2 hours, we'll also get to the homes of the boys who will be playing this final, big final, and we will talk to their families. हम हर जगह जाएंगे। हमारे जो सहयोगी हैं वो हर क्रिकेट खिलाड़ी जो है उनके घरों पे मौजूद हैं, लेकिन हम शुरुआत यहाँ पे करते हैं। हमारे जो इन हाउस गेस्ट हैं, सबा भाई आपसे सबसे पहले सप्तमती का भी है, बाजी भी है हमारे पास। तो आप ये बताएं कि आज का मैच में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? आंकड़ों के अनुसार देखें, भारत का पल्ला भारी है, लेकिन जैसा कि पैट कमिंस ने कहा है कि हम 1 लाख जो है दर्शकों को साइलेंस कराना जानते हैं। देखिए, उनका प्रयास तो यही होगा कि इतने ढेर सारे जो दर्शक मैदान में आएंगे और सभी जो दर्शक हैं वो सपोर्ट करेंगे भारत को, उनको किस तरह से चुप कराया जाए, पर ये होने वाला नहीं है आज बाबा, क्योंकि हमारी टीम का प्रदर्शन हर मैच में वो निरंतरता नज़र आई है, बेहतरीन प्रदर्शन रहा है, हर एक खिलाड़ी अच्छे फॉर्म में है। और फॉर अ चेंज ये पहली बार है कि विश्व कप का फाइनल हो रहा है, यहाँ पर भारत फेवरेट है, ऑस्ट्रेलिया एक किस्म से अंडरडॉग है। तो मुकाम बहुत बड़ा है, ये बहुत भारत एक और इतिहास लिखने के कगार पे है। दूसरा मौका है जो भारत अपने घर पे, तीसरा मौका जो भारत अपने घर पे विश्व कप का फाइनल खेल रहा है, और ये उम्मीद यही है कि भारत ये मुकाबला जीते भी और ज़बरदस्त प्रदर्शन देखने को मिले। पर सबसे बड़ी बात है रोहित शर्मा कप्तान और एक बैटर के रूप में वो किस तरह की शुरुआत आज देते हैं भारत को, उस पर बहुत कुछ आगे चलकर निर्भर करेगा। विजय, हाउ मेनी टाइम्स डू यू रिमेंबर India starting a World Cup final as favorites? Rika, forget about us. I mean, I was talking to Justin Langer yesterday, and he said that Australia will start as an underdog. And I reminded him a couple of times in that show, underdog. You know, it's so heartening to see, and it's such a moment of pride for us. And look at the cricket, how it's evolved in our country, and the progress, which is phenomenal, and the confidence which is shown in the performance. And I think the only way Indian cricket is going at the moment is forward.
So we can call it underdogs Australia versus invincibles. Well, 20 years ago, nobody could have imagined a statement like this being made for Australia, underdogs against India. And by the Aussies, to be very honest. And by the by Aussies. them, yes. Yeah. गुलशन Do you- जी एक सवाल और यहाँ पे है कि पैट कमिंस ने ये भी कहा है कि हमें फाइनल खेलने आता है, हमारे टीम में ऐसे प्लेयर्स हैं जो फाइनल खेल चुके हैं, हम फाइनल खेलने के लिए बने हैं। बिल्कुल सही कहा है पैट कमिंस ने, क्योंकि 5 बार वो फाइनल जीते हैं, आई थिंक 2-3 बार फाइनल में पहुंचे भी हैं। तो सही कहा, और मेरा यही मानना है कि ठीक है, ये टैग है कि अंडरडॉग्स हैं ऑस्ट्रेलिया, इंडिया फेवरेट है, नो डाउट। जैसा प्रदर्शन है इंडिया की टीम का, सभी 10 के 10 मैच जीते हैं और उनके हर एक चीज़, हर एक में टिक है, चाहे बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, प्लानिंग, सभी में। बट कहते हैं कि क्रिकेट ग्राउंड में खेली जाती है, राइट, कि ये है कि टैग है, नो डाउट अच्छा खेल रहे हैं, बट मुझे लग रहा है जो आज टीम अच्छा खेलेगी और वही जीतेगी। और टॉस का मुझे लग रहा है कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया अगर टॉस जीतती है, अगर बैटिंग करते हैं तो चांस है। इंडिया चाहे टॉस हारे या जीते, बट आई थिंक इंडिया का पलड़ा काफी भारी है। हमारे साथ हमारे बच्चा लोग, जो जरा इंडिया इंडिया चीयर कर दो एक बार, इंडिया इंडिया, बच्चा लोग इंडिया, जोर से इंडिया 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 इंडिया। चलिए। परफॉर्मेंस की एक बड़ी वजह रही है मोहम्मद शमी। वर्ल्ड कप में 54 विकेट्स उन्होंने लिया है। बदरुद्दीन जी, हमें बताइए कुछ स्टोरीज ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप जो आपको खासकर लगा है, दे स्टैंड आउट व्हेन इट कम्स टू मोहम्मद शमी। और इस बीच कुछ बातचीत हुई है क्या शमी के साथ? उन्होंने क्या बोला आपको अबाउट दिस रन? देखिए, मेरी बातचीत हुई थी उससे जब वो खेल नहीं रहा था तब हुई थी, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है आदमी जब नई प्लेइंग में नहीं जगह नहीं मिलती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ इस वर्ल्ड कप में ये नज़र आई कि एक दूसरे की परफॉर्मेंस से बहुत खुश हैं सारी टीम। मतलब इस बार अलग सा लगा ये टीम को देखते हुए कि ऐसा नहीं लग रहा कि वो जो बाहर बैठा हुआ है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है, ऐसा डिस्टर्ब से नहीं लगे बिल्कुल मुझे। तो यही वजह मुझे लगती है कि आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो ये एक होके जो टीम खेल रही है और एक दूसरे की परफॉर्मेंस से खुश हो रहे हैं, तो सबसे बड़ी वजह मुझे यही लगती है कि जो आज टीम यहाँ पहुंची। बदरुद्दीन साहब, पूरा इंडिया जानना चाहता है कि आपने क्या मंत्र फूका है उसके कान में, क्या खिलाया आपने, कैसे तैयारी की? मतलब बंदा 6 मैच खेल करके 23 विकेट ले रहा, क्या दिया मंत्र आपने? या बाबा ये पूछ लीजिए कि क्या खिलाया है हाँ, आपने? वही मैंने बोला कि क्या खिलाया आपने, सभा का भी सवाल है, बताइए, पूरा देश जानना चाहता है। देखिए, खाया वही जो खाता है वही खाया है उसने, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो अलग से बात कुछ है, नहीं लेकिन खाया। क्या सिखाया आपने? बॉल सीखना- पकड़ना, देखिए, इसने बोला कि स्क्रम्बल सीम वही पकड़ता है जो जिसको बॉलिंग करने से डरता है, उसकी सीम पोजीशन। क्या सिखाया आपने? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है आप उस पर काम करते रहिए। मतलब ये आप भटक नहीं, उसे आपने देखा होगा पूरे, कभी भी उसने देखा होगा क्रॉस सीम से बॉल डालते हुए आपने कभी नहीं देखा होगा, तो आप वो जाता ही नहीं है उधर। तो आपको जो पता है कि मेरे पास जो एक बेस्ट क्वालिटी है तो मैं उधर ही रहूँ, उधर दूसरी तरफ ना जाऊँ, और कोई वजह नहीं है। देखिए, जब एक जगह बॉल डालना सबसे बड़ी चीज़, जैसे वो शुरू से डालता आया, लेकिन इस बार थोड़ा सा लग रहा है कुछ अलग सा ही दिख रहा है रिदम उसका। चलिए, हमारे पास 2 क्रिकेटर भी वो आपसे सवाल पूछेंगे। पहले हमें बताया जा रौनक के पास जाना है। The excitement is building here inside the studio. The excitement is building outside the studio as well, and we have Ronak, our colleague, outside the stadium in Mumbai. रौनक, बताइए क्या हो रहा है आपके पास? हेलो रौनक, आपको आवाज आ रही है? रौनक शिवाजी पार्क शिवाजी के बाहर पार्क खड़े में। हैं। Well, we'll try and get Ronak on the line, but going into the discussion, Vijay bhai, we were talking about the role of the batters here, the role of especially the top order batters, wicketkeeper, KL Rahul. How can we not talk about the wicket keepers here? How do you see his performance in this tournament? And just the fact that he has done what nobody has managed to do as a wicketkeeper in this team. How do you rate his performance? And obviously, please show us your bias when it comes to wicketkeepers. Well, this is the pressure. The 2 wicket keepers in the house had put pressure on the host, and he's starting the conversation asking about the wicket keeper, and that's where they stand out. But I think before the wicket keeper coming back, I Sabha will agree with me. Wicket keeping is a thankless job. You got to be your own best friend. You got to be mentally really strong, and this is what KL has shown. Coming back from the injury, I think he had the opportunity to spend some time with himself when he was recovering. That's what he's done in NC, and he's talked about it. That time that he needed
to think about the game, think about his role, think about purpose and everything. And I think everybody was in touch with him during that time as well. You saw his wicket keeping, you saw his batting, but I think DRS, where there was, he was very, very crucial as well. And I think that was very important. He played that role as well. And sometimes, you know, he was so stubborn and so strong to turn down the captain by saying this, don't take it. And I think you need somebody, and only one who will do it like that, who's absolutely sure about his decision, and KL is very sure at the moment. आपने सही कहा, डीआरएस में काफी विकेट कीपर का योगदान होता है। डिसीजन रिव्यू सिस्टम उसको कहा गया, बाद में धोनी रिव्यू सिस्टम भी कहा गया। अब लगता है उसका नाम बदल के केएल राहुल रिव्यू सिस्टम करना चाहिए। सीधे अरुण के पास चलते हैं, जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर खड़े हैं। वहां पे लोगों का सैलाब है जो कि मैच देखने जा रहे हैं। अरुण बताइए क्या हो रहा है, बातचीत कराइए। ये पीछे आपके खड़े हैं, ये हर मैच में दिखते हैं, इनसे बात कीजिए। सैलाब है, शोर है बाबा, मुझे आपकी आवाज शायद बहुत अच्छे से ना आए। और देखिए यहाँ पे क्या दिख रहे हैं आप, जो रंग है, जो लाइट्स है, जिस तरीके का उत्साह है। कहाँ से आए आप? मैनचेस्टर से आए। मैनचेस्टर से आए हैं आप? और स्पेशली इस मैच के लिए? इस मैच के लिए आए, सेमीफाइनल में भी थे, यहाँ पे आए और आज किस तरीके के रिकॉर्ड बनते हुए देखना चाहते हैं आप? इंडिया 300, 350, 400 बनाया है और आराम से कितना बनाएगी इंडिया? 300 यूएस से आया और सिर्फ आज का मैच देखने के लिए इंडिया। उधर देखिए शामी भाई के आगे कोई टिक सकता है क्या? ये ऑफ कोर्स दिस इज अ स्पिन ऑन द वायरल मीम व्हिच इज एल्विस भाई मीम। सो देयर यू सी, टीम का ड्रीम है। यू सी 1983, 2011, 2023। सो यू नो 2023 पर बहुत उम्मीदें हैं और जिस तरीके से लोग यहाँ हर्ष और उल्लास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप कहाँ से आए? लंदन से आए। आप भी लंदन से? मेरा भैया है ये मैनचेस्टर से, मैं लंदन हूँ। सभी इंडिया जब भी जिधर भी खेलती है वो उसके पीछे पीछे फॉलो कर। आपका आउटफिट बहुत बढ़िया है और जिस तरीके से आप तिरंगे के साथ घुल मिल गए हैं। ये हमारा ही ट्रेडिशनल है, गुजराती स्टाइल है, लेकिन हमने भी चालू किया था। अभी देखो जितने भी फैन फॉलोवर है हमारे कॉपी कर रहे हैं, लेकिन हम भी खुद खुशी है हमको। वाह, देखिए तो इनकी टर्बन में लाइट्स है, कुछ इसी तरीके की लाइट्स, कुछ इसी तरीके की रोशनी आज शाम को भी आपको देखने को मिलेगी। और शामी, रोहित, इन सब पर नजरें हैं। आज आपको क्या लगता है कौन रिकॉर्ड बनाने वाला है? आज इंडिया रिकॉर्ड बनाएगी। हम इतना रन मारेंगे कि वो लोग कर नहीं पाएंगे और शमिल विकेट पे विकेट ले जाएगा। 400 देखा था, इस बार आपको क्या लगता है क्या स्कोर होगा? हम लोग वही स्कोर बनाएंगे जो ऑस्ट्रेलिया ने हमारे खिलाफ बनाया था 2003 में। भारत का नाम विश्व में तो गूंज ही रहा है, आज तो वर्ल्ड कप लेकर ही जाएंगे। शमी के 350 रिकॉर्ड, 350 विकेट हम हासिल करेंगे। 3 विकेट बाकी है उसके, जैसे ही वो होगा हम आएंगे। सेमीफाइनल हमें देखने को मिला था और शामी पर भी बहुत ज्यादा नजरें हैं, विराट कोहली पर भी है, रोहित पर भी है। आपको लगता है कि जो ऑस्ट्रेलिया है अब अच्छी फॉर्म पकड़ ली उन्होंने, तो वो थोड़े डर की बात है? ऑस्ट्रेलिया मोहम्मद शमी ने मैच हारे पहले 2 और उसके बाद वो फॉर्म में नजर आ रहे हैं, तो क्या वो चिंता का विषय है? ऑस्ट्रेलिया के लिए चिंता का विषय है क्योंकि मोहम्मद शमी पूरे जोश में है और आज जसप्रीत बुमराह भी अच्छी विकेट लेने वाला है और विराट कोहली आज 51वीं सेंचुरी मारेगा और इंडिया का 350 प्लस स्कोर होगा और ऑस्ट्रेलिया 200 के अंदर ऑल आउट हो जाएगा। और यहाँ देखिए बदले की बात हो रही है कि यहाँ 2003 का बदला लेगा। 2003 का बदला और जिस तरीके की सेंचुरी के एक्सपेक्टेशन है। ये वो एक्साइटमेंट है जो आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये वो उत्साह है जो वाकई इस वक्त हर किसी के चेहरे पर है और एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जा रही है। जी अरुण, निश्चित रूप से जो है वहाँ पे एक तरह से लोग जो है जुट रहे हैं और लोगों से बात कीजिए, किसके नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है वहाँ पे? मुझे आपकी आवाज ज्यादा सुनाई नहीं दे रही है। आप बताइए, आप ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहे हैं या हम लोग वार्नर को सपोर्ट करने आए? अब झुकेगा। आप भारतीय हैं? यस, मैं एक्चुअली टीवी पे आने के लिए बिग स्क्रीन पे आना है मुझे। पर देखिए यहाँ पे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात हो रही है, तो इट्स ओके अगर आप किसी ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर आप कौन फेवरेट है आपका ऑस्ट्रेलिया? मेरा वार्नर है क्योंकि वो
I think we'll try and get back to We'll get back Ahmedabad. to Arun. Vaishali, I have a question. You know, there are lots of fans out there. Obviously, they're ecstatic. They're talking about the 2003 match, avenging that final. Do you really think that many runs are possible on this deck today? जी बिल्कुल आपको लगता है 350 रन बन सकता है आज? इट्स अ क्रिकेट, कुछ भी हो सकता है क्योंकि एक क्रिकेट ही एक ऐसा गेम है जो एक बॉल में कहीं से भी बैटिंग अगर कोई टीम कर रही है तो वो हार भी सकती है और जीत भी सकती है, और हम इस चीज़ में कुछ कह नहीं सकते कि कितने रन्स बन सकते हैं। बट हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हमारी जो इंडिया टीम है उसमें उन्होंने अभी तक जितने भी मैचेस खेले सब में उन्होंने विदाउट एनी अ लॉस टीम इंडिया जीती है अभी तक। और आज जो एक हौसला है हमारे फैंस का भी और हमारे इंडिया टीम का भी, वो एक अलग लेवल पे है, वो कॉन्फिडेंस अलग है। और ऑस्ट्रेलिया टीम की अगर हम बात करें तो लास्ट मैच में जैसे हुआ था कि हमारे बैट्समैन 0 पे आउट हो गए थे, बट उसको देख के हमारे जो रोहित शर्मा कैप्टन हैं और ईशान जो उस टाइम पे शुभमन गिल की जगह पे प्लेस पे खेले थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी टीम अभी वर्ल्ड कप में बेस्ट और पैक टीम है। क्योंकि हमारे बॉलर्स, अगर हम बात करें हमारे बॉलर्स की, तो हमारे सारे बॉलर्स बहुत ही अच्छा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूं बैट्समैन की, हमारे अगर एक भी बैट्समैन अगर आउट हो जाता है इन केस, तो उसके बाद हमारे पास लाइनअप में इतने 5-6 प्लेयर्स हमारे बैट्समैन ऐसे लाइनअप है कि आप कितने प्लेयर्स और कितने बैट्समैन आप आउट करेंगे। Bhushan Paji, I think Osama likes to read thrillers from the 100th page. I'm going to talk about the first 99 pages, and in the first 99 pages, you also have 2 initials, which are V and K. You know who I'm talking about. And the kind of World Cup that he has had, would you say that the players are playing for him this time around, like the way he and the other boys played for Sachin in 2011? Yeah, I think what you're saying is correct. They're playing for, I think, for Virat Kohli. Plus, they're playing always. It is playing for the country. It's a great pride that we have to play very well. And like Sachin, for Sachin they did in 2011. I think for Virat Kohli, India team will do this. And all the 11 plus 4 more, 15 players and sports staff, they are doing an exceptional job, and I am very hopeful, and I'm sure that India will win today the World Cup. Well, we also have in the house Gauri Datta Gupta, our colleague, who was one of those fortunate beings being in Eden Gardens, at the Eden Gardens, experiencing Eden when Virat Kohli scored his 50th run. Gauri, tell us. One of the only person who's wearing the Team India jersey. Yes, and tell us about the experience of being in Eden at that point. A dream for me to watch a match at the hallowed and historic Eden Gardens, and I grabbed that opportunity when it came to me, and Eden Gardens did not disappoint. It lived up to its absolutely iconic reputation. It was just a few days after Durga Puja, but when you enter Calcutta, that sense of festival hangs in the air. Right. You know, from those beautifully lit up streets to posters and hoardings everywhere. And once we were inside Eden Gardens, the atmosphere was absolutely electrifying. Almost everybody was in the blue jersey. Most of the spectators there were in Virat Kohli's jersey because it was Virat's birthday that day. And I was absolutely amazed. Thousands of people, such an orderly crowd, such a disciplined crowd, no pushing and shoving. I saw many senior citizens who were not able to walk properly, and the police was escorting them to their seats. Where else in Eden Gardens will you get jhalmuri as a snack? You know, so it was really Talk to us a little bit about that moment when Virat Kohli went on to score his 50th So ODI they ton. dimmed the lights of the stadium when Virat was about to score his century. And yes, गौरी जी आपके पास आते हैं। अनूप जलोटा हमारे साथ हैं लाइन पे। अनूप जलोटा जो है टीम इंडिया को जो है वो शुभकामनाएं देना चाहते हैं। सर क्या कहेंगे, कुछ सुना सकते हैं तो सुना दीजिए। मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और मुझे ये भी मालूम है कि हमारी टीम इंडिया जीतेगी। भाई सामने मोदी जी बैठे हो, योगी जी बैठे हो, तो कितना जोश बढ़ जाएगा, जरा सोचिए। उनको देख के एक अंदर उत्साह और डबल हो जाएगा। अभी तक जो प्रदर्शन भारतीय टीम ने किया है वो कमाल का किया है, एक भी मैच हारी नहीं है।
और खूब अच्छे रन बनाए, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज तो कुछ गजब होने वाला है। कुछ गुनगुना दीजिए, कुछ गुनगुना दीजिए। सुनिए, मैं उनको उनके इस जोश के लिए 2 पंक्तियां सुनाता हूँ। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन। ये मैं आनंद लेने वाला हूँ। लखनऊ से चित्रकूट के रास्ते पे जा रहा हूँ, कार में हूँ, और रास्ते भर में प्रार्थना करूंगा, मैच देखूंगा और खूब मजा लूंगा। हैव ए सेफ जर्नी सर, हैव ए सेफ जर्नी। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ रौनक भी जुड़ रहे हैं मुंबई से। Let's finish with Gauri's story and go to Ronak. Well, Gauri, you were talking about that moment when Virat Kohli brought up his 50th 100. Lights were dimmed in the stadium and all the spectators switched on their torchlights on their phone. So it was this magical moment of silence, absolutely, thousands of people in a packed stadium, and it was just amazing when he scored. Very good. Well, we also magic have moments, yes. Magic moments there, and hopefully more magic moments in this match. We also have Ronak in Mumbai. Ronak, what is the excitement like? What is the atmosphere where you are? Oh yeah, sir. जी देखिए, इस वक्त मैं सूर्य कुमार यादव के घर के पास जो ग्राउंड है जहां पर अक्सर सूर्य कुमार यादव प्रैक्टिस किया करता था, और आज मेरे साथ वो उनके दोस्त है जो कि शुरुआती तौर पे सूर्य कुमार यादव के साथ प्रैक्टिस किया करते थे, मैच खेला करते थे। आज निश्चित तौर पर न केवल टीम इंडिया, सूर्य कुमार यादव के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। विश्व कप फाइनल में टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ आज मुकाबला करने जा रही है। हमारे साथ उनके दोस्त है। सर, ये बताइए कि क्या एक्साइटमेंट है और कितनी उम्मीद है सूर्या के को लेकर? एक्साइटमेंट तो बहुत है। हम जस्ट एकेडमी में बंद करके मैच ही देखने वाले फुल टाइम। वर्ल्ड कप फाइनल्स है, बहुत रेयर केस है कि इंडिया ही जीतेगी लग रही है हमें, बट ये हम सब छोड़ के अभी मैच ही देखने जा रहे हैं। ये बताइए, आपका नाम बताइए और सूर्या को लेकर कितनी उम्मीद है? क्या आपको लगता है इस मैच में सूर्या बड़ा स्कोर खड़ा करेगा? जी, मेरा नाम जिनेश है और एक्सपेक्टेशन तो है, अगर होपफुली अगर सूर्या को ऊपर बैटिंग ऑर्डर आता है तो होपफुली हम लोग बहुत खुश रहेंगे। अगर ऊपर बैटिंग करता है, रन बनाने के चांसेस बहुत है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मुख्य तौर पर ये सभी जो सूर्या के दोस्त हैं वो सूर्या को लेकर बहुत एक्साइटेड, और उनका साफ तौर पर कहना है कि भले इस वर्ल्ड कप में सूर्या उस तरह का कमाल जो T20 मुकाबलों में दिखाता था वैसा ना दिखा पाया हो, लेकिन उम्मीद है कि जो विश्व कप का फाइनल होने जा रहा है उसमें निश्चित तौर पर सूर्य कुमार यादव का बल्ला चलेगा। आपका नाम बताइए और क्या उम्मीद रखते हैं? सबसे आपको लगता है कि किसका सबसे अच्छा परफॉर्मेंस इस बार होना चाहिए? मेरा नाम देवेंद्र पाटिल है। हाँ, तो अपने ऊपर के जो ऑर्डर्स है, हाँ, रोहित शर्मा है, KL राहुल है, देन शुभम गिल है, इनके ऑर्डर्स तो पीछे बैटिंग का कुछ नाम ही नहीं है। हाँ, सवाल ही नहीं। सूर्या को बैटिंग ऑर्डर आया, हाँ, ठोक देगा पूरा। सूर्या ठोक देगा तो निश्चित तौर पर देखिए, सूर्य कुमार यादव उनके इलाके में है, उनके घर के पास इस वक्त मौजूद है, और निश्चित तौर पर जो उनके दोस्त हैं वो यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि फाइनल मुकाबले में तो भी कहीं ना कहीं सूर्या का बल्ला यहाँ पर चले, और जो सूर्य कुमार यादव का निश्चित तौर पर जो जलवा देखने को मिलता है वो आज फाइनल में देखने को मिले। जी रौनक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम सबको उम्मीद है कि केवल सूर्या ही नहीं, पूरी टीम इंडिया चले, और क्या पता आज का दिन सूर्या के नाम पे ही हो। आज का दिन जो है वो काफी खास है। हमारे स्टूडियो में 1-2 म्यूजिशियंस भी हैं यहाँ पे जो हमारे लिए कुछ जो है वो पेश करना चाहते हैं यहाँ पे। प्लीज टेक इट ओवर। अरे जल्दी आओ जी, शोर मचाओ जी, अरे जल्दी आओ जी, माहौल बनाओ जी, आज तो पूरा देश हमारा, आज तो पूरा देश हमारा जश्न मनाएगा, आज तो पूरा देश हमारा जश्न मनाएगा, कि अब की बारी वर्ल्ड कप भारत ले आएगा, अब की बारी वर्ल्ड कप भारत में आएगा, कि अब की बारी वर्ल्ड कप टीम इंडिया लाएगा। अरे जल्दी ही आओ जी, माहौल बनाओ जी, अरे जल्दी ही आओ जी, जरा शोर मचाओ जी,
आज तो पूरा देश हमारा, आज तो पूरा देश हमारा जश्न मनाएगा कि भारत देश वर्ल्ड कप अब की बारी लाएगा, भारत देश अब की बारी वर्ल्ड कप लाएगा, भारत देश अब की बारी वर्ल्ड कप लाएगा। थैंक यू। एनडीटीवी के नेटवर्क पर इस विशेष कवरेज में आपका स्वागत है। हमारे साथ ढेर सारे बच्चे भी हैं। बच्चे टीम इंडिया के लिए नारे लगाओ, इंडिया 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 इंडिया। We are getting you the coverage of this match, India versus Australia, from all across the country. We have our colleagues spread across the length and breadth of the country. At this hour, we have Vimal Mohan standing by near the Sabarmati River. Am I right? Yeah, river front. जी विमल। हेलो हेलो रिका, हेलो हेलो एवरीवन, हेलो बाबा, हेलो रिका। और मैं यहाँ पे खास ये जो जगह है मैं यहाँ पे इसलिए बैठा हूँ, हमारे साथ एक तो ये देख सकते हैं लोकल फैंस हैं, ये लोकल फैंस हैं, और ये एक इन्फॉर्म्ड क्रिकेटर है, फॉर्मर क्रिकेटर। लेकिन यहाँ पे कल टीम इंडिया आई थी डिनर के लिए, ये अटल ब्रिज है यहाँ पे, और इसी यहाँ पे इनका टीम इंडिया का डिनर हुआ था। यहाँ जो एक क्रूज चलता है उस पे डिनर हुआ था, तो इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कनेक्ट है यहाँ पे। और मेरे हाथ में एक अखबार है, ये लोकल अखबार है यहाँ का, अहमदाबाद मिरर। मुझे अच्छी बात ये लगती है इस तरह के टैबलॉइड में कि आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। 18 पन्ने का अखबार है, लेकिन आप जो भी पन्ना खोले क्रिकेट, तो ये एक जो है लोकल अखबार आपको इस तरह की खबरें देता है और पूरा क्रिकेट से रंगा हुआ है। कम से कम ये जितने भी पन्ने आप खोले उसमें या तो क्रिकेट है या 2-3 पन्नों में मूवीज की बात है। तो ये जो जैसे जहां भी देखें क्रिकेट का एक कनेक्ट जरूर यहाँ पे आपको दिखता है। और यहाँ पे जो पैट कमिंस और रोहित शर्मा है जो इस बाउली में गए थे, यहाँ से मैंने आज रिपोर्ट करने की भी कोशिश की। यहाँ ट्रॉफी, इसी ट्रॉफी के लिए आज तो दोनों साथ बैठे हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद आपस में शेरों की तरह और लड़ते हुए नजर आएंगे। और इन फैंस में कई सारे, ये हमारे साथ इधर आओ जी बच्चे, ये एक है हार्दिक पांड्या का फैन, इसका देखिए हेयर स्टाइल, इसने हार्दिक पांड्या का स्टाइल रखा हुआ है। ऑरेंज कलर का बल्ला। दुखी हो तुम, पांड्या नहीं खेल पा रहा है? हाँ। दुखी हो? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? समीर। आज तुम लोग किस पे दाव लगा रहे हो जी? यहाँ पे लोकल तुम्हारा प्लेयर है कौन? बुमराह है? मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी के भी दीवाने हैं। मोहम्मद समीर। मोहम्मद समीर। सारे मोहम्मद शमी के दीवाने हो। रोहित शर्मा, विराट कोहली। चलो भाई, इंडिया इंडिया तुम भी नारे लगा दो। जब लगा रहे थे मैंने चुप करा दिया था। इंडिया इंडिया कौन जीतेगा? और हमारे साथ एक इन्फॉर्म्ड क्रिकेटर भी है। आप तो अहमदाबाद के हैं। ओवरऑल यहाँ जो कनेक्ट है, अभी पूरा शहर सिर्फ क्रिकेट की ओर कनेक्टेड है। चाहे 1,32,000 होंगे, लेकिन जो 8 लाख की यहाँ आबादी है, या पूरे गुजरात में 6 करोड़ की, 125-30 करोड़ की इंडिया में, वो सारा सबका ध्यान मोटेरा पे है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे। पूरा अहमदाबाद सिर्फ क्रिकेट की बात कर रहे हैं। आप जहाँ पे भी जाए, कुछ भी हो, आपको सिर्फ जर्सीज दिखेंगे या लोग टिकट्स पूछ रहे होंगे कि टिकट्स मिल रहे कि नहीं मिल रहे। तो आज यही होप है कि कल इनके पिताजी गए हुए थे ओएनजीसी के अस्पताल में, तो वहां एक मरीज भी टीम इंडिया की जर्सी पहन के बैठा हुआ था। और ये हंसी की बात लग रही थी, शादियों में भी लोग मंत्र के बाद यही लग रहा है। पंडित जी पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, कल खेलेगा विराट कोहली, सेंचुरी बनाएगा? तो ये एक आलम है। और मैंने आपको इस फ्रंट से, रिवर फ्रंट जो है यहाँ पे अटल ब्रिज से, जानबूझ के ये तस्वीर दिखाई है। वैसे तो पूरा इंडिया आज मेन इन ब्लू हो गया है और नीले सैलाब में सिमटा हुआ है, लेकिन या फैला हुआ है। लेकिन ये जो है रिवर फ्रंट, यहाँ से टीम इंडिया का कनेक्ट है, इसलिए मैंने आपको यहाँ से कुछ तस्वीरें और कुछ जिंदा दिली की बातें बताने की कोशिश की है। विमल बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपने एक लड़के को दिखाया, पांड्या जैसा हेयर कट था। यहाँ पे लोग कह रहे हैं आपका हेयर कट रोहित शर्मा की तरह है, क्योंकि आप ही हमारे कैप्टन हो। रोहित शर्मा रोहित शर्मा की मैंने जर्सी इसलिए खरीदी है कि रोहित शर्मा मतलब फास्ट क्रैकिंग स्टार्ट दे रहा है। आई होप मैं भी क्रैकिंग स्टार्ट दे पा रहा हूं आप लोगों को। और आप यहां से इनिंग बिल्ड करके टीम इंडिया को, और एनडीटीवी इंडिया जो है विराट कोहली की तरह से पारी को ले जाए। मोहम्मद शमी को कैसे भूल सकते हैं, कोई ना कोई एंड करेगा और टीम इंडिया की विक्ट्री होगी। हालांकि हम ये फैंस जैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन जो टीम इंडिया जिस फॉर्म में है
उस हिसाब से जरूर हम उम्मीद कर सकते हैं। क्रिकेटिंग के हिसाब से बात करें तो जो टीम लगातार 11 जीत रही है बिना हारे हुए, वो विजय रथ को डिजर्व करती है आगे भी, और टीम इंडिया की विक्ट्री और तीसरी बार खिताब जरूर डिजर्व करती है। विमल, आप अहमदाबाद का लुत्फ उठाइए और हम आपके पास वापस आते रहेंगे। बट मीनवाइल लेट्स टेक अ लुक एट द टीम बस ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम, बोथ द टीम्स in fact reaching the Narendra Modi Stadium. We would love to show our viewers those visuals as they pass by and they zip through the narrow streets of Ahmedabad to reach the Narendra Modi Stadium. I have in the studio with me Vijay Daya. Vijay has been making some interesting observations about Team India's journey and Team India's bus especially, and how they have been traveling during this World Cup. Vijay, would you like to revisit what you were saying about how all through the World Cup they have kept the curtains in the bus open for the fans to see them? Oh, absolutely. We talked about it earlier as well, and you just mentioned the revisit. It's a very good gesture, and this Indian side is making so many statements on and off the field as well. I mean, there are so many people from all the way to the hotel till the stadium will be standing there. Some of them that can't get in. They wanted to have a look at their favorite player. They want to look at them, how they sit, how their whole journey has been done. And I think this is another step towards that. Normally you see people pull those curtains and you can't see your star players going to the stadium, but I think it's a very, very good gesture, and it shows, it's been definitely talked about, and they want all their people, all their players to be visible to everyone else and just to see what they have to offer. Well, absolutely. हमारे साथ पूजा भी जुड़ रही हैं। पूजा के पास चलते हैं। पूजा, आपको हमारी आवाज आ रही है? कहाँ पे हैं आप? शिवाजी पार्क में है जी पूजा। मैं मुंबई के मशहूर शिवाजी पार्क में हूँ जी, शिवाजी पार्क में हूँ, और जैसा कि बाबा आपको भी पता है कई महान खिलाड़ी यहाँ से निकले हैं, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, और कई युवा खिलाड़ी हर रोज यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए पहुंचते हैं इस उम्मीद के साथ कि कभी भारत के लिए वो भी खेलेंगे। कई ऐसे युवा खिलाड़ी हमारे साथ हैं, आप लोगों ने भी देखा है कई महान खिलाड़ियों को यहाँ पर देखा है। पृथ्वी शॉ को देखा है। हाँ, पृथ्वी शॉ, रोहित शर्मा ने यहाँ पर खेला। रोहित शर्मा भी नहीं खेला। तो आज रोहित शर्मा कितने रन बनाएंगे, क्या लग रहा है? शतक पूरा कर पाएंगे कि नहीं? सेल्फलेस खिलाड़ी है, लेकिन आज क्या शतक करेगा, पूरा शतक करेगा आज। 100 जिताएगा इंडिया को। हाँ, 100 हो जाएगा। 100 तो पक्का हो जाएगा। वो एक्चुअली 100 के लिए खेलता भी नहीं है। हाँ। वो सेल्फलेस प्लेयर है। पावर प्ले में तोड़ के फोड़ के चले जाता है, वो गरज ही नहीं है। और इस बार तो सारे प्लेयर्स बहुत अच्छा खेल रहे हैं। हम लोग एक के ऊपर डिपेंड नहीं है, अपने 11 प्लेयर पूरे सब टीम को भारी पड़ेंगे जी। अच्छा, ये भी बताइए यहाँ की मिट्टी में क्या है, शिवाजी पार्क की मिट्टी में क्या है? सचिन तेंदुलकर से लेके श्रेयस अय्यर तक, रोहित शर्मा, सब ने यहाँ पर सीखा है। आप लोगों में ऐसी उम्मीद जगती है कि एक दिन हम भी भारत के लिए खेलेंगे? उस उम्मीद के साथ कितने साल से आप सीख रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे कम से कम भी 15 साल हो गया। 15 साल से? हाँ, तो आपने तो सबको देखा होगा यहाँ पर? जरूर देखा है, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स यहाँ पे सब यहाँ पे से निकले हैं। जो बॉम्बे के रोहित शर्मा हो, हमारा सूर्या दादा हो, वो भी यहाँ से ही निकला है। तो ये मिट्टी में इतना दम है क्योंकि ये मिट्टी का जो नाम है शिवाजी पार्क, जो शिवाजी महाराज जिनके सब प्रेरणादायक से सब आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, एक अलग ही दम है कि सभी लोग यहाँ से तैयार हो रहे हैं। और वो जिद है इस पार्क में, वो जिद है कि आप लोग इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं इस उम्मीद के साथ। हाँ? जरूर जरूर एक जिद लेके ही चलेंगे, और जरूर हम तो सुबह से तैयार है कि कभी हम जश्न मनाएं कि हमारा वर्ल्ड कप। क्या प्लानिंग क्या है आप लोगों की आज फाइनल की? कैसे कहाँ फाइनल के लिए? मस्त घर पे, मस्त घर पे पॉपकॉर्न विपकॉर्न लेके पिक्चर कैसे देखते हैं? अभी मस्त अपन एंजॉय करेंगे। क्या होगा, किस प्लेयर पे एकदम उम्मीद टिकी हुई है कि आज ये जिता देंगे? मक्खन वाली जीत तो हमें 10 में मिल चुकी है, आज क्या होगा? विराट कोहली। टक्कर, क्योंकि विरोधी भी बहुत मजबूत है, किसी को अभी हल्के में ले सकते नहीं है, फाइनल है, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा पे ज्यादा। और बॉलर्स के बारे में भी बात करिए, मतलब तीनों ने मिलके जो 54 विकेट लिए हैं उनके बारे में बात करिए। मोहम्मद शमी, जडेजा और वो जसप्रीत बुमराह। अपना बॉलिंग अटैक बहुत ही तगड़ा है, कोई खेल ही नहीं पाएगा। हाँ, अपन और कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, कॉन्फिडेंस अलग जगह और कॉन्फिडेंस अलग जगह। अपन अपनी टीम पे बहुत भरोसा है, तो बेस्ट ऑफ लक टू टीम इंडिया। गो वेल, प्ले वेल। कहाँ संभलना पड़ेगा, कहाँ पे आपको लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या होना चाहिए? बैटिंग हो, बॉलिंग हो, पहले क्या हो? स्टार्टिंग में तो बैट्समैन में तो हम लोग कोई डाउट ही नहीं है कि हम लोग कहीं पे हमें कोई रोक सकता है। बट बॉलिंग अटैक में जो स्टार्टिंग के 10 to 15 ओवर्स है, तभी हमें अगर कोई 3-4 विकेट्स अगर हम
वहाँ पे समेट लेते तो तभी ऑस्ट्रेलिया पूरा नीचे आ जाएगी। अभी आपने तो देखा रहेगा मैक्सवेल ने लास्ट जो उनका अभी हुआ है परफॉर्मेंस अबाउट 200 जो किया है, तो मैक्सवेल को आने की वहाँ पे कुछ यही नहीं आनी चाहिए। और ज़रूर हम लोग मतलब उतने के लिए तैयार रहेंगे क्योंकि बहुत दिनों से भी प्रैक्टिस चल रही है और हमें मालूम है कि शामी ज़रूर उनको लेंगे। मतलब पहले लग रहा था कि वो तो है ही नहीं, लेकिन श्रेयस के लिए भी यही था, उनकी टेक्निक पे सवाल उठ रहे थे। अभी उनका भी ट्रांसफॉर्मेशन देखने लायक है। उनका इक्का एक्चुअली शामी वो जब आता है बॉलिंग करने तो खत्म आगे। तो आज दिवाली है आप लोगों की। आज सच में सभी लोगों ने पटाखों के लिए सिर्फ 2 घंटे की इजाजत है। जरूर, कोई उसमें ये नहीं है 2 घंटे, वो सिर्फ नाम के लिए है। बट हम लोग सच में जो लास्ट दिवाली खत्म हुई है, बट एक्चुअल दिवाली आज है क्योंकि पूरा वर्ल्ड कप मतलब वर्ल्ड में हमारी टीम अगर 1 नंबर पे आती है तो सभी की खुशी आपको जायज रोड पे दिखेगी शाम में। ठीक है, तो बाबा देखे असली दिवाली आज है, इनका ये मानना है शिवाजी पार्क की। एक बार तस्वीरें आपको हम दिखा दें किस तरह से दिन भर यहाँ पर जो युवा खिलाड़ी हैं, बच्चे हैं, आकर क्रिकेट प्रैक्टिस करते हैं। तमाम महान खिलाड़ी यहाँ से निकले और आज एक अलग ही जोश है शिवाजी पार्क में इस उम्मीद के साथ कि वर्ल्ड कप ट्रॉफी हमारे पास आएगी आज। जी बाबा। Well, we all hope and pray that that is what happens. The World Cup trophy comes back to India after 2012. Sabir bhai, I want to ask you about the kind of confidence that you see among the fans, and they're very confident about India performing well and winning. That is how these people are seeing it. Why do you think there is this confidence among all the players, among all the fans around India? And I was chatting with Gush before you posed that difficult question to me. Is Indian team is blessed to have cricket fans like ours. I think this sport is blessed to have Indian fans. So whether it is such kind of a match is happening in India or even abroad, we have seen that Melbourne full house, almost 90% Indians. I remember Champions Trophy final in England against England. About 85 to 90% people were from India or Indian cricket fans, and I think the kind of energy we have seen in the Indian fans today is all because of the performance that the Indian side has put in, and it is not only for one game, but there is a consistency in the performance, and I think that is why there is so much of hope that is floating around among all the Indian fans this time around at home. Against Australia, a big side, a big game, but I think the runaway winners definitely should be India. जी, तो सभा भाई कह रहे थे कि जो मैं हिंदी के दर्शकों को बता देता हूँ कि सभा भाई कह रहे थे कि जो टीम ने अपने प्रदर्शन से इतना उत्साह और इतना जो उम्मीद जो है वो दर्शकों में भर दिया। रिका, आपको सवाल करना है। बदरुद्दीन जी, मोहम्मद शमी के बारे में बात करें तो probably he'll end up the tournament as the highest wicket taker. Tell us in today's match, which are the batsmen particularly he will have his eyes on? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जैसा वो अभी तक बॉल डाल रहा आ रहा है, अभी तक जैसा उन्होंने देखा ही आपने कि सबसे सारे मैचों में ज़बरदस्त बॉल डाल रहा है, तो हम यही चाहते हैं कि एक स्पेल आज वो ऐसा और डाल दे कि जो हम वर्ल्ड कप जीत जाए। एक ही स्पेल और चाहिए आज, तो आज 5 विकेट ले और हमको मैच जिता दे आज। अरे क्या बात कही है, हम सब की दिल से यही ख्वाहिश है कि आज एक ऐसा डेडली स्पेल जो है। मैं तो कह रहा हूँ कि लास्ट टाइम 7 विकेट लिए, इस बार एक और एक्स्ट्रा ले। टीम एक्सपोर्ट्स है। दिक्कत ये है अगर वो एक और ले लेगा ना तो उसके बाद भी एक और मांगेगा। इसीलिए मैंने 5 कहा है। That is how Indian fans work. मैंने इसीलिए 5 कहा है, बाकी औरों को भी तो लेने पड़ेगा। सबका हक है। We'll continue this discussion on NDTV. We'll slip into a short break at this point. We'll be back with more. एनडीटीवी नेटवर्क पर क्रिकेट के इस महा कवरेज में आपका स्वागत है। ये महा कवरेज हम आपके लिए इसलिए लेके आए हैं कि अहमदाबाद में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप का फाइनल मैच थोड़ी देर बाद खेला जाना है। हमारे साथ कुछ मेहमान भी हैं, हमारे जो रेगुलर गेस्ट आते हैं उनके अलावा। आप कहाँ से आए साहब, आप बताएं, अपना परिचय दें जरा सा। हाँ, मेरा नाम संतोष गुप्ता है और मैं सलाम बालक ट्रस्ट एनजीओ से आया हूँ। और ये सलाम बालक ट्रस्ट की जो पीछे बैठे हुए हमारे टीम, वो स्ट्रीट क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने के लिए गए थे चेन्नई।
तो स्ट्रीट क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं होगी, आप बताएं उसके बारे में। ये एक्चुअली स्ट्रीट क्रिकेट वर्ल्ड कप ये जब भी वर्ल्ड कप होता है उससे कुछ महीने पहले शुरू करते हैं। जो भी पूरी कंट्री में जहाँ जहाँ स्ट्रीट बच्चे हैं उनकी टीम बनाई जाती है और जिस जगह पे स्ट्रीट वर्ल्ड कप होता है उसी कंट्री में स्ट्रीट क्रिकेट वर्ल्ड कप ही होता है। तो इस बार हमारे पास इंडिया में हुआ था, जिसमें से टोटल 19 पार्टिसिपेशन थे, 8 इंडिया की टीम थी, बाकी ऑल ओवर पूरी कंट्री की। किसने जीता ये वर्ल्ड कप? ये युगांडा ने जीता। अपने खिलाड़ियों से परिचय तो कराइए हमारा। ये माइक पहले मैं कैप्टन से शुरू करता हूँ, जो हमारी कैप्टन थी। जी कैप्टन बताएं। नमस्ते, मेरा नाम शीतल है और हम लोगों का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ पे। टीम युगांडा जीती, कोई बात नहीं, लेकिन जो हमारा मतलब उनसे सीख। आप कहाँ से आते हैं, पहले अपने बारे में बताइए, लोगों को आपके बारे में दिलचस्पी होगी। अच्छा, मैं इस्लाम बालक ट्रस्ट एक स्टूडेंट हूँ, वहाँ पे पढ़ती हूँ और वहीं से। मुंबई से? नहीं, दिल्ली से। तो आप अभी पढ़ाई कर रही हैं? हाँ। चलिए, और कौन है भाई? हेलो, मेरा नाम प्रीति है, मैं भी सलाम बालक ट्रस्ट की स्टूडेंट हूँ, मैं भी वहाँ पर पढ़ती हूँ। करती क्या क्रिकेट में? बॉलिंग बैटिंग क्या करते हैं? मैं बैटिंग और कीपर करती हूँ। कीपिंग जी। हेलो, मेरा नाम हर्षा है और मैं बॉलर हूँ। बॉलर है, चलिए अच्छी बात है। और भी लोग हैं? मैं इन लोगों से जानना चाहता हूँ कि इस मैच के लिए आप लोगों ने क्या प्रिपरेशन किया है, किस तरह से देख रहे हैं कि मैच किस तरह से जाएगा? मेरा नाम अर्जुन है और मैं भी सलाम बालक ट्रस्ट में हूँ और मुझे क्रिकेट में बॉलिंग करना बहुत पसंद है। तो इस मैच के बारे में बताइए, हम ही क्यों ज्ञान दें, आप भी अपना कुछ ज्ञान दीजिए। माइक है, आप नेशनल टेलीविजन पे है। क्या कहेंगे ऑस्ट्रेलियन टीम, इंडियन टीम के बारे में बताइए। सर, इंडियन टीम में अभी समीन मतलब बहुत अच्छा बॉलर, मतलब मेरे को लगा कि उसकी बॉलिंग बहुत अच्छी है। मैं चाहता हूँ कि आगे चल के मैं भी एक अच्छा बॉलर बनूँ, मेरा सपना है। मैं भी सोचा है कि आगे आपके कोच साहब बैठे हैं, पूछिए, अभी आपके ये मौका जीवन में कभी नहीं मिलेगा, पूछिए कोच साहब को पूछिए। सर, मैं भी चाहता हूँ कि आप मुझे ट्रेन करें कि मैं भी इंडियन टीम में सिलेक्ट हो सकूँ। पूछिए नहीं, इन्हीं की गाड़ी में बैठ के चले जाइए इनके साथ। कोच साहब, बदरुद्दीन साहब बताइए, एक बच्चे की ख्वाहिश है, आप एक टिप दे दीजिए। बिल्कुल बेटा, जब भी आपको मेरी जरूरत है मैं हमेशा तैयार हूँ क्रिकेट के लिए, और आप मेहनत करते रहिए, बिल्कुल आपको मौका मिलेगा, ऐसा नहीं है। एक पहला गुरु मंत्र दे दीजिए, क्या करना चाहिए फिटनेस के लिए, क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी चीज है मेहनत, और कोई शॉर्टकट नहीं है बेटा क्रिकेट में। मेहनत आप करोगे तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। जी। सबसे पहले तो विजय भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इनका जो ग्राउंड है, नवीन भैया ने हम लोग को बहुत सपोर्ट किया था। वहाँ पे जाके बच्चे प्रैक्टिस करते थे एवरी डे, वो हम लोगों को मतलब बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। थैंक यू वेरी मच भैया। बहुत बहुत अच्छा। We also have Pratibha from Bengaluru, who's getting us all the latest. आपके पास भी आऊंगा, अभी थोड़ा धीरज रखिए, लंबा कवरेज है। अब की बार आप ही की बारी है। Well, we'll try and go to Bengaluru where Pratibha is there with some fans and trying to get us what the atmosphere looks like. Pratibha, take over. Well, in fact, I'm here at Phoenix Mall, which is one of the prominent malls in a prominent area called Whitefield. And as you can see, the stage is being set. In fact, they are preparing the place for a lot of cheer as well as good luck wishes, positive vibes being sent across to Team India. I have a couple of fans with me as well who have come here all the way to watch this match at this particular live screening. How excited are you? It's like super excited to watch Team India live the World Cup. Right, so आप कहाँ से आए हैं और कितने उत्सुक हैं आप? Yeah, we are quite excited. We are from Bangalore and India playing World Cup final, that too in India. Yeah, it's a big day. So all the best, Team India. Well, it was a tension-packed match when it came to the semi-finals. What about the finals? Are you know, it's going to be nail-biting? Yeah, the India is looking pretty good with the captaincy of Rohit, and this is the best team we could offer for the India. So I wish they should leave all the previous matches what we have with Australia or what are the gins they have, right? We are breaking everything this year. So I think India will break it and rock it, and we will be the winners. So India will take the cup. Yeah, sure. Can we have some cheer for Team India? Yeah. India! India is listening to all of this. Best wishes, good wishes being sent from Bengaluru all the way to Team India right there. Back to you.
Well, thank you very much, Pratibha from Bengaluru. Let's go over to Kolkata, where my colleague Saurabh Gupta is standing by. We've had some fantastic matches this season at the Eden Gardens, including Team Australia playing the semi-finals there and barely managing to get through to the final. Saurabh, tell us what's happening in the City of Joy. Well, you know, the City of Joy, Eden Gardens, lot of cricket fans and cricket fans who understand their cricket, who are keen connoisseurs of the game. And we have a lot of people who are here who are again connoisseurs of the game. And, you know, they're all practicing, but they'll all also watch in the evening. What are you looking forward to this afternoon when the game gets underway? We want India to win, obviously. And we want to switch revenge of 2003. And we want a good match, you know. Like in football, we have Brazil versus France. That, you know, it's that type of hype. That type of hype. What about you, sir? You were just batting. I understand you all understand the game, study the game, play the game. What are you expecting? This is a corporate practice going on. Yeah. This is Palan Chatterjee, and we are a team ILS. Yeah. And every year we participate in this tournament. Did you watch the game at Eden this time? Obviously. And how was it? And what are you expecting? Who are you expecting to stand out today? Today, obviously India. Any doubt? No, which player are you expecting to stand out? I think Rohit Sharma's run is due. I think today. Rohit Sharma's runs are due. So what about you? You had an interesting story about 2003, which you were saying, and you know, sweet revenge for 2003 is what you're expecting. So 2003, just before the World Cup, I went and bought a 52-inch television. I thought I'm going to bring the cup with that television. And the first ball that Zahir Khan bowled was a wide through leg side. And I remember my father turned towards me and said, "We should have watched the game in the earlier TV." And that was sort of, so. For me, it's 20 years, and I think it's 20 years due. It's about time. It's about time. What are your wishes for Team India? I think they should play confidently. I think they've played extremely well. I don't think they should take any pressure. I think they've deserved. They're the deserving finalists today. And if they just play to their potential, I don't think there's any stopping us today. They're deserving finalists. A crowd in Kolkata that understands its cricket, but everyone's also looking for revenge, sweet revenge for 2003. It's the repeat 20 years later, and everyone's hoping that this time around, you know, India. It's Team India, right? Ji Saurabh. Yeah. Do you think, Sababhai, and I'll come to both of you, Gushpaji and Vijay, do you feel that India cannot take Australia likely in this final? Let's also have a look at the Australian likely playing 11, if we can request our director to fire the likely playing 11 and you can talk over it. Yeah. Yeah, well, Australia is such a fabulous side because of the fact that most of the players have been part of winning campaigns before. And I don't think India would make the mistake of taking this side lightly, especially in the World Cup final. And I think it's all boils down to your preparation and your execution of all the game plan that you have in mind. And I think it's equally important to visualize. And I think both the sides would be wanting to all that. But I think given the conditions that we have seen in the World Cup so far, wherever India has the kind of venue that India has played, I feel India's 11 or the combination that India has played with, they are far better equipped to do well in these conditions. Australia at times have faltered because the conditions have not been so favorable to them, or they have not been able to adapt to these challenges. And I see the same kind of story being unfolded today in the final match also. Gushpaji, sanksep mein, haan. I think the first 10 overs are very crucial for Australia. If they bowl, they take 2-3 wickets in the first 10-12 overs. But in batting, I think this is more crucial. If they play well, they don't lose wicket, then they have got a chance. Otherwise, I think India is very well equipped. If they lose 2-3 wickets, still we have got batsmen who can consolidate. जी विजय भाई आपके पास आता हूं जरा एक बात हमें कहा जा रहा कि सिराज के फ्रेंड्स के पास चलते हैं वो उनके लिए कुछ प्रार्थना कर रहे हैं अब सीधे हैदराबाद चलते हैं जी आप बताएं आप क्या करने वाले हैं आप लोग सिराज के दोस्त हैं उसके लिए क्या प्रार्थना करना चाहते हैं आज उसी का दिन हो सकता है हम लोग हमारे फ्रेंड्स पूरे मोहम्मद सिराज के फ्रेंड्स हैं
जो भी हमारे पूरे फ्रेंड्स हैं ये, और हम दुआ कर रहे हैं सिराज के लिए और टीम इंडिया के लिए दुआ कर रहे हैं। यहाँ पर दरगाह शरीफ पर आकर सैयद अहमद बादे पाक फसलानसर में जो सिराज का घर है यहीं पीछे है, पहले यहीं रहते थे सिराज, वो पूरे लोग हम लोग दुआ करेंगे। यही दरगाह है, चादर चढ़ा रहे हैं सैयद अहमद बादे पाक। जी हाँ, चादर चढ़ा रहे हैं अभी, ये पूरे फ्रेंड्स है ये। चादर चढ़ा दिए, अभी फूल चढ़ाएंगे, फिर दुआ करेंगे। Thank you very much for showing us those visuals, beautiful visuals coming in from Hyderabad. Prayers from all across the country coming in for Team India. We have with us Badruddin ji, who's Mohammad Shami's coach. Badruddin ji, you know, ever since the World Cup began, हम बात कर रहे थे, we've been talking about the healthy competition between Mohammad Shami and Mohammad Siraj. कहीं ना कहीं Mohammad Shami edged out Siraj, you know, in the competition, and these are all talks that we have been doing in the studio. Tell us, you know, about how did you view this competition and how, you know, what it took for Shami to edge him out. देखिए, कंपटीशन तो रहता ही है जब आप दो बॉलर, कोई से जितने बॉलर आपकी टीम में रहते हैं तो कंपटीशन रहेगा, लेकिन आप अच्छा करते आ रहे हैं जब तो अच्छा करेंगे तो आपको मौका मिलते रहेंगे, ऐसा नहीं है। और देखिए, जब 3 बॉलर खेल रहे हैं तो हमारे साथ फास्ट बॉलर 3 हैं हमारे पास, तो वो तीनों अच्छा करते आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि सिराज की जगह शामी को खिलाना है, शामी की जगह सिराज को खिलाना नहीं बनता था कहीं पे भी, जो तीनों ही बॉलरों को खेलना चाहिए। और जो शुरू में शार्दुल ठाकुर को खिलाया जा रहा था वो मेरी नज़र में उसका नहीं बनता था, उसकी जगह शामी को खिलाना चाहिए था, मेरा अपना मानना ही है। बाकी तो देखिए टीम के हिसाब से चलता है सब कुछ, क्या कॉम्बिनेशन खिलाना है क्या नहीं खिलाना है वो सब लोग जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक स्टोरी के बारे में हम पूछना चाहते हैं कि न्यूज़पेपर में हम पढ़ रहे हैं कि मोहम्मद शमी जब कोविड के दौरान उन्होंने प्रैक्टिस किया यानी होन्ड हिज स्किल, वो बॉल्स शायद ओवरनाइट सोक करके रखते थे और अगले दिन वो गीले बॉल से बॉल करते थे। कुछ हमें बताइए उस बारे में कि व्हाट वाज ही एग्जैक्टली डूइंग। देखिए, आजकल जो IPL चल रहा है वो नाइट में मैचेस होते हैं तो ड्यू होती है वहाँ पर, तो ड्यू में बॉल को संभालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको बॉल आपका ग्रिप नहीं होगा सही से, परेशानी होती है, स्पिनर को भी होती है, फास्ट बॉलर को भी होती है। तो उसी की प्रैक्टिस की है उसने, नाइट में अपना थोड़ा सा बॉल को गीला करके प्रैक्टिस करते हैं, तो इसलिए की जाती है कि वो नाइट में आपको बॉल अच्छा ग्रिप हो जाए। जी, मैं चाहूँगा कि वो सिराज का जो शॉट्स आ रहा है वो हमारे डायरेक्टर शिवानी आप दिखाएं। और मेरा अब सवाल है, क्या आपको लगता नहीं है विजय भाई, क्रिकेट जो है वो सबको यूनाइट कर रहा है, ये कितना बड़ा फैक्टर है, जबकि हम एक एक बात पे डिसएग्री करते हैं। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देख के तो मेरे गूज़बम्प्स हो रहे हैं। जी बिल्कुल, और अगर आप देखिए थोड़ी देर पहले एक चर्चा हो रही थी कि क्यों सारे भारतीय समर्थक हैं वो सब एक ही लय में सिर्फ ये कह रहे हैं कि भारतीय टीम जीतेगी, क्योंकि हर जगह से सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही है कि भारतीय टीम जीतेगी, चाहे वो टीवी पे एक्सपर्ट्स बैठे हों, प्लेयर जो अपना काम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो आवाज़ बाहर जाती है ना, आपका प्रदर्शन, काफ़ी सारी चीज़ें एक स्टेटमेंट की तरह आती हैं वहाँ पर, और बहुत रेयरली हुआ है कि आपको 90% 95% एक ही पेज पे मिलते हो। नहीं तो इस देश में इतने सारे लोग हैं, कई बार सही चीज़ भी हो रही होती तो भी दूसरी तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि सब एक भीड़ के पीछे नहीं चलना चाहते। तो स्पोर्ट्स से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। रोल मॉडल के बारे में आप बात करते हैं या कोई स्टेटमेंट देने के बारे में बात करते हैं, इससे बड़ी कोई और चीज़ नहीं है। भाई आपसे और पाजी आपसे भी रिएक्शन चाहूँगा इसको। ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, मैंने कभी नहीं देखा कि इस तरह से होता होगा, लेकिन अभी एक नई चीज मुझे लगी। बाबर, यही तो बड़प्पन है हमारे देश का। और स्पोर्ट्स एक ऐसा मीडियम है जिसके बारे में विजय ने भी कहा कि सबको जोड़ के रखता है, और ये टीम स्पोर्ट है। और इसमें अगर आप टीम के कॉम्बिनेशन को भी देखेंगे, इसमें कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो अलग अलग धर्मों से आते हैं, पर एक बार आप मैदान में उतर गए तो फिर आपकी कोशिश, आपका प्रयास यही होता है कि आप सब लोग मिलजुल कर मैच जीतने का प्रयास करें, जो कभी तक भारत ने किया है। और मुझे लगता है ये महानता है इस स्पोर्ट की, और अच्छी बात यह है कि इस तरह का की एकजुटता
हम लोगों को मैदान में नजर आती है, और उसी प्रकार की एकजुटता मैदान के बाहर भी फैंस में हमें देखने को मिल रही है। पुष्पा जी, ये टीम इंडिया को दर्शाता है, सब एकजुट होकर आज हम प्रार्थना कर रहे हैं और मैदान में भी इकट्ठे लड़ते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जैसे अलग अलग धर्मों से, और कितना अच्छा लग रहा है मुझे देख के, और इसको देख के यही लग रहा है कि क्रिकेट ही एक धर्म है हमारे देश में। ये जैसे देखो कि कितना कुछ जोड़ रहा है हमारे देश को, बहुत अच्छा लगा ये देख के। कुछ कहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, देखिए यही है, सबको एक कर देता है खेल जो रहता है, एक ही बोतल से सारे लोग खिलाड़ी पानी पीते हैं, तो ये एक करने का ही काम है, और इसमें कोई धर्म का आड़े नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से, तो कोई भी ये सब बहुत अच्छी चीज़ है। You see, the thing is, when you look at the pictures outside the stadium, it's a sea of blue. So everyone donning the same color, it basically gives you the idea of unity and the strength that India brings together when it. One religion that India has pretty much, that's cricket. Absolutely, absolutely. क्रिकेट की बातें कर ले, हम टॉस के नजदीक जाते जा रहे हैं, क्या हम शुरू करें? तो पहले यहीं से शुरू करते हैं। सभा भाई, टॉस यहाँ पे क्या करेंगे? ये अब टॉस आपके हाथ में है नहीं, पिछली बार आपने टॉस जीता था तो पहले बॉलिंग किया था, इस बार क्या करें? मुझे लग रहा है कि टॉस ऑस्ट्रेलिया के लिए काफ़ी मायने रखेगी। अगर वो टॉस जीतते हैं तो मुझे लगता है वो बैटिंग ही करेंगे, बट इंडिया के लिए अगर वो टॉस जीतते हैं या हारते हैं, जैसे वो प्रदर्शन कर रहे हैं बैटिंग में, पहले चेज करते हो या पहले बॉलिंग करते हो भी, क्योंकि हमारे पास अगर पहले ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करती है, अगर उनके 60-70 पे नो लॉस भी होता है, तब भी हमारे पास ऐसे बॉलर्स हैं जो मिडिल ओवर में विकेट्स ले सकते हैं। बट अगर इंडिया ने पहले बैटिंग की और ऑस्ट्रेलिया ने विकेट नहीं गिरा पहले 10-12 ओवर में, फिर मुझे लग रहा है ऑस्ट्रेलिया का कोई चांस नहीं। सभा भाई, टॉस आपके हाथ में है नहीं, पिछली बार आपने जो है बॉलिंग किया था, इस बार क्या करेंगे? हाँ बाबा, पर सबसे बड़ी बात यही है, रोहित शर्मा ने कितनी बार ये कहा है कि ये टीम इतनी अच्छा खेल रही है कि टॉस आपके हक में जाता है कि नहीं जाता उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और आपके विश्व कप के लिए बहुत ज़रूरी है। विश्व कप अगर आपको जीतना है, जो टॉस जिसके बारे में हम लोग सालों साल से बात करते आ रहे हैं, उस फैक्टर को आप हटा सा दें जो कि भारतीय टीम ने किया अपने प्रदर्शन से। पर हाँ, भारत ने अभी तक जो निर्णय लिया है, रोहित शर्मा जो निर्णय लिया है, वो बहुत कुछ निर्भर करता है विकेट के ऊपर और कंडीशंस के ऊपर। तो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिली हमें रोहित शर्मा के डिसीजन में। इसी वजह से ये चूँकि वर्ल्ड कप का फाइनल है, जिस तरह से खबरें आ रही हैं, वो एक बार अभी विकेट की तो तस्वीर हमें देखने को मिली नहीं है, पर अगर इस विकेट में घास नहीं है तो मेरे विचार में दोनों टीम प्रेफर करेगी पहले बैटिंग करना, और जिस तरह से भारत ने पिछले मैच में किया था न्यूजीलैंड के विरुद्ध। मैं आपसे भी जानना चाहता हूं, आप यूपी क्रिकेट एसोसिएशन से, आप भी अपनी राय दे सकते हैं, इंडिया को क्या करना चाहिए अभी? टॉस यदि जीत जाते हैं तो हार जाते हैं तो देखिए जैसे कि मैं क्रिकेट अंपायर हूँ, स्टेट में 10 साल मुझे अंपायरिंग करते हुए हो गए हैं, क्रूशियल होगा, और 1100-1200 मैचेस मैंने अंपायरिंग की है। तो जहां तक मैं समझता हूं, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि किसी भी सिचुएशन में, और जैसे एक वर्ल्ड कप जैसा इवेंट है, तो उसमें चाहिए कि टॉस जीत के बैटिंग ही करना चाहिए। मुझे आप ये बता दीजिए कि आधी बॉल लगती है, अंपायर कॉल क्यों होता है? मतलब बॉल लगी तो लगी, तो उसमें अंपायर कॉल में आपने उंगली उठाई तो होगा, नहीं उठाई तो नहीं होगा। हाँ जी, मेरा मानना इतनी सी भी बॉल लगी तो लगी ना भाई। जी सर, वो इसका एक्चुअली क्या है कि वो एक सॉफ्टवेयर है, जो सॉफ्टवेयर ये प्रिडिक्ट करता है। सॉफ्टवेयर इट इज नॉट 100% श्योर। तो इसमें क्या होता है कि जब हमें लगता है ऑन फील्ड कि ही इज आउट, तो इसका मतलब ये है अगर उसमें टच करके भी जाए तो वो रियलाइजेशन का मैटर है कि वो रियलाइज कब हो रहा है, वो इससे डिपेंड करता है। सॉफ्टवेयर जो बनाया गया है एक कुछ आइडियल कंडीशन। मेरा सवाल नहीं है, लाखों लोगों का सवाल है, और मैं ये इसका जवाब लेके आया हूं एक्चुअली। मुझे पता था मेरे सामने सवाल आएगा। इसमें एक बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, एक हमारे इंग्लैंड के एक्स क्रिकेटर हैं, उन्होंने बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी थी। बट एज एन अंपायर ये मैं समझता हूं कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में जितनी देर के लिए बल्लेबाज को शॉट खेलने को मिलता है, उतने ही टाइम में अंपायर को डिसीजन देने के लिए मिलता है ना। बट हम आते हैं अंपायर्स कॉल पर। तो अंपायर्स कॉल का मतलब मैं पब्लिक को सीधा सीधा बताना चाहता हूं कि अंपायर्स कॉल का मतलब ये है कि जो अंपायर ने डिसीजन दिया दैट इज अंपायर्स कॉल। वहां वो सॉफ्टवेयर कुछ नहीं कर रहा है। सॉफ्टवेयर तो ये बता रहा है कि अंपायर ने वो जो बॉलर ने बॉल डाली उसको रीड किया, और उसको रीड करके एक जो उसके अंदर पहले से ये प्रोग्रामिंग फिक्स है कि इस कंडीशन में बॉल सीम ऐसे होगी, बॉल पिच वहां होगी, तो वहां से बॉल प्रोबेबली मिस द हिट विकेट और द हिट द विकेट।
बट इफ जब हम आते हैं उस पर अंपायर्स कॉल पर, तो वो 100% सॉफ्टवेयर हम उसको वेरीफाई नहीं करते हैं। विजय भाई आप कुछ बोलना चाहते हैं? पहले तो ये प्रोग्राम का नाम गूगली है, इसका मतलब ये नहीं आप गूगली डालेंगे। वो जो जवाब उन्होंने दिया है वो बहुत लिमिटेड है, और वो जिस फील्ड में है वो उसको पूरी तरीके से बोल नहीं सकते, क्योंकि ये रूल के हिसाब से जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं, क्रिकेटर्स भी वही बात करते हैं, और कहीं ना कहीं आईसीसी इसकी वही तो मैं कहता हूं, बॉल लगी तो लगी, वही चाहते हैं सब, वही चाहते हैं कि अगर लगी और कितनी भी लगी तो विकेट पे लग गई ना, तो वो डिसीजन होना चाहिए। और मुझे लगता है कि आधी लगी, पूरी लगी, चौथाई लगी, इससे क्या मतलब है? बाबा आईसीसी की जो रिव्यू कमेटी होती है उसकी सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि वो हर साल इन सब चीज़ों के ऊपर बात करते हैं, और फिर रूल्स ना चेंज करने में बिल्कुल हिचकिचाते नहीं, और कहीं ना कहीं ये चेंज होगा। और अगर हल्की सी भी गेंद लग रही होगी तो वो फिर आप देखिएगा कि वो रूल बदलना पड़ेगा। सर बहुत लोग कह रहे हैं इस बात को, बट आई एम डिसएग्री अबाउट दैट। Well, we've been talking about Team India and their preparations for the World Cup. I'm joined at this hour by Australian consul from Bengaluru, Andrew Collister. Andrew, thank you very much for being a part of our show this afternoon. Well, rarely has it happened that Australia is getting into final of a World Cup as underdogs. How does it feel being in the underdog corner? Hi, Rekha. Thanks for having me on. It's very relaxing, actually. I think, yes, as you said, Australia always expects, usually when we make a final, but being away, being in India against an extremely good Indian team, the pressure really feels off. And I think most of the people I've been talking to this morning are just excited to see what we can do in front of over 100,000 people. This is Osama from the NDTV studio. I also want to get your opinion on the fact that there are at least 5 players who were part of the 2015 World Cup winning team. They're also playing in this final. Do you think that is an advantage for Australia when it comes to the final in this match? Yeah, I think it can only help. That's pretty much the only other situation where you do have a final situation in front of nearly 100,000 people at the Melbourne Cricket Ground, which, of course, I was at home when everyone's supporting you, as opposed to being away when almost 100% of the crowd will be against them today. But to have that experience, to have handled that pressure, especially, and they chased that day as well, which they may have to chase today. I think that's really experience you can't fake, and you can't make anywhere else, which I suppose is for the Indian team the only real seed of doubt today, that they've got excellent players from 1 to 11. Can they handle that final today? Andrew, we are talking about 100,000 fans at the Narendra Modi Stadium today, but when the Australian team plays in MCG against India, the colour isn't really different, because you have 100,000 blue here, you have 100,000 blue in MCG as well. In that sense, would you say that the Australians will be used to the chants, used to the kind of pressure that they will be facing today? Yeah, it's a tribute to the marvellous Indian-Australian community that we have in Australia. They make a great contribution to our national life. I'll also bring Kolkata on Thursday. I was there. That was 65,000 fans, all firmly cheering for South Africa. So that was a very vocal crowd, and they handled it really well. Obviously, the game got pretty tight. It was pretty tense. But handling that semi-final situation, it should hopefully calm some of the nerves that they'll be facing today. Right. I also want to get your reaction, Andrew, on what Pat Cummins said. He basically said in his press conference that it would be great to shut down the noise of the 100,000 fans present in the stadium. Do you think these are mind games played by the Australian captain, or do you feel he wants to motivate his team because he knows that it is going to be a pressure situation? I say it's probably more of the latter. Dare I say, it's a very common Australian soundbite to silence a hostile crowd. Australians have across the world, we're a team that everyone does enjoy beating. So, in England as well, silencing the crowd and kind of motivating his team that we've got a lift from the very start. So, if we're bowling first, Rohit Sharma hits 3 fours off the first over, that crowd's going to be up and roaring. But if we get a wicket off the first over, that crowd gets a bit unsure and it takes a bit of the power away, and it grows the players within. So I think you could say it's sort of mind games to the crowd, but I think definitely motivating his own players. Okay, Andrew, before we let you go, let's have a quick prediction from you in terms of percentage. How much percentage do you give to Australia to win this match, the final match? You're putting him on the spot. Well done.
On the spot, my head definitely says India. My heart will always say Australia. I think if Australia wins the toss and hopefully from my point of view bats first, I think we're looking about an even chance. But I'll be honest, I think if India bats first, we're going to struggle. I'd put us down about 25% if we bowl first. But if we bat first, I'd give us a good 50-50. Well, thank you very much, Andrew, for joining us on the broadcast. हर तोल मोल के बोलते हैं, उन्होंने तोल मोल के ही बोला है. Well, Andrew, Baba is saying that you being a diplomat, you have perfectly played your role there, and thank you very much. It is the big final between India and Australia at the Narendra Modi Stadium. It is going to start in just a short while from now. We'll be talking about that match. We'll be getting reactions from all over. And let's quickly go across to Panchkula, which is Shubman Gill's hometown. And let's see what is happening there. Our colleague Umang is there to get us the latest. उमंग बताइए क्या हो रहा है वहाँ पे? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं पंचकुला में, जहां आज इस महाकुंभ के लिए, आज इस महात्योहार के लिए, एक महाआयोजन के लिए देखिए अनुष्ठान, एक बड़ा अनुष्ठान किया जा रहा है। मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं यहाँ पर पिछले 24 घंटे से भी ज्यादा समय से ये हवन जारी है पंचकुला में। आपको बता दें शुभमन गिल जो है उनका गृह क्षेत्र है, और ऐसे में यहाँ पर आज भारत की जीत के लिए वर्ल्ड कप 2023 के लिए आज यहाँ तैयारी जो है किस तरह से अनुष्ठान किया जा रहा है, हवन किया जा रहा है। ये तमाम जो उनके फैन है इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, इनके हाथ में तिरंगा है, शुभमन गिल का फोटो है, पोस्टर है, ये सभी इनके अंदर भी कहीं ना कहीं आज शुभमन गिल एक बसा हुआ है, और इनका रोम रोम जो चाहता है कि आज भारत की जीत हो, जिसको लेकर इन्होंने आज यहाँ पर ये हवन रखा है। आपको बता दें कि जिस तरह से कहा जाता है कि जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खूब चाहिए, आज नीली जर्सी वालों को ये दिखाना होगा आसमान को कि जीत कैसे हासिल की जाती है। और आज उसी को लेकर आज जो ऐतिहासिक मैच होना है भारत में विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, उसको लेकर सबकी धड़कनें तेज है। करोड़ों क्रिकेट फैन है जिनकी धड़कनें तेज हो रखी हैं, और इस वक्त यहाँ पर पंचकुला में शुभमन गिल, बहुत उम्मीदें हैं। मैच के बाद भी होने वाला है। आज मैच है फाइनल में, तो हमारा कल से यहाँ पे हवन चल रहे हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच। हमें पता है कि डेफिनेटली आज इंडिया विन करेगा। 20 साल पहले जब ऑस्ट्रेलिया ने 20 साल पहले ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराया था, तो आज वही मौके की इंडिया पे बदला लेने का मौका अच्छा है। तुम्हें पक्का यकीन है कि आज इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा। शुभमन गिल को क्या कहना चाहेंगे आप? उनके बहुत बड़े फैन हैं, आपके शहर से हैं वो। हाँ जी, शुभमन गिल हमें पता है कि ICC रैंकिंग में नंबर 1 पे है। वर्ल्ड कप में इस बार परफॉर्मेंस उनका अच्छा रहे, तो डेफिनेटली बात वो सेंचुरी स्कोर करेंगे। एंड विराट कोहली भी है, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, एंड बॉलिंग में आप शमी की बात कीजिए या जसप्रीत बुमराह, सभी अच्छी फॉर्म में है, तो डेफिनेटली जी बिल्कुल। देखिए इन्होंने कहा सभी अच्छी फॉर्म में है और शुभमन गिल को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड है। आपका नाम? मेरा नाम नितिन है। मैं भी चाहता हूँ कि आज इंडिया वर्ल्ड कप जीते, और ये 2011 में इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी, उसके बाद एक अच्छा मौका है इंडिया के पास। इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, और इससे बेहतरीन मौका इंडिया के पास और नहीं हो सकता वर्ल्ड कप जीतने का। पूरा देश वेट कर रहा है इस चीज के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया उमंग। और पाजी आप बताइए, बढ़िया करेगा आज शुभमन? बहुत बढ़िया करेगा। ये बोल दो गुश कि आज मैच जीतेगा, तुमको भांगड़ा करना है, कोई करे या ना करे। नहीं, मैं करूंगा, मैं पक्का करूंगा भंगड़ा, और आज मुझे लग रहा है मैं भंगड़ा करूंगा, हम जीत ही जाएंगे, हम जरूर जीतेंगे। तो गुश पाजी ने नेशनल टेलीविजन पे कह दिया कि आज जीता इंडिया तो भंगड़ा करेंगे। हम सारे भंगड़ा करेंगे, हम सारे करेंगे। हम ब्रेक में जा रहे हैं क्या? हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद ताबिश आ गए। ताबिश जो है कुछ यहाँ पे हमारे साथ क्रिकेटर्स भी हैं और कादिमनी भी हैं, उन सब से बात करेंगे।
अरे जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया टीम जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, भारत टीम जीतेगा। एवरीवन जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया टीम जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, भारत टीम जीतेगा। आज हमारा सारा देश जश्न मनाएगा, आज हमारा सारा देश जश्न मनाएगा। अबरी बारी वर्ल्ड कप इंडिया ही लाएगा, अब की बारी वर्ल्ड कप टीम इंडिया लाएगा। थैंक यू। इंडिया इंडिया और जोर से इंडिया 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 और जोर से इंडिया इंडिया। इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा। ताबिश। तो देखिए इस तरह के नारे जो हैं वो आपको देश भर में आज के दिन सुनाई देंगे, क्योंकि मौका ही ऐसा है, फाइनल मुकाबला जो है वो यहाँ पर होना है। लेकिन इसमें कई सारे प्लेयर्स हैं जिन पर नज़र है, मोहम्मद शमी उनमें से एक है, उनके कोच हमारे साथ हैं, इनसे थोड़ा समझते हैं। ये ज़रा समझाइए आप, क्योंकि शमी का जिक्र तो ऑस्ट्रेलियन टीम कर रही है, ऐसा कम ही होता है कि ऑस्ट्रेलिया किसी को लेकर दबाव ले, लेकिन लग रहा है शमी को ले रही है। ये बॉलर पर असर डालता है क्या? ऐसा नहीं है, जब आप इतना इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं तो ये छोटी सी तो टीम वाले करते ही हैं कि ऐसा प्रेशर डालें, लेकिन आप प्रेशर हैंडल करने वाले बॉलर बन चुके हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप नए हैं, आप पे एक्सपीरियंस है आपको, ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा तो कोई दबाव पड़ेगा उस पर। अच्छा, शमी को आप जानते हैं, बहुत वक्त से जानते हैं, उनके कोच रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा है कि शमी के मन में चल रहा है कि नहीं अब की बार तो बदला ले देना है, मुझे तोड़ डालना है, फोड़ डालना है, सब विकेट ले रहे हो 5-5 करके? देखिए अच्छा कर रहा है, सबसे बड़ी चीज़ यही है कि भाई ज़रूरत है टीम को ऐसी, और वो कर रहा है उसमें परफॉर्म। तो ये तो नहीं, मैं नहीं कहूँगा तोड़ डालना है फोड़ डालना है, लेकिन हाँ ठीक है, अच्छा कर रहा है। और हमें बस मैं यही कहूँगा कि एक स्पेल और डाले, ऐसा बस मेरा यही कहना है। चलिए, एक तो शमी है देखिए, लेकिन अब क्योंकि जो यंग क्रिकेटर्स हैं उनकी नज़र रहती है, जब वर्ल्ड कप होता है तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स देखने को मिलते हैं जो इंस्पायर करते हैं प्लेयर्स को। तो हमारे साथ कुछ यंग प्लेयर्स भी हैं, उनसे भी थोड़ा समझते हैं। पहले आपसे शुरुआत करते हैं, आप खेले भी हैं, आप ज़रा बताइए कि अभी की टीम को आपको देख के कैसा लग रहा है? क्योंकि टीम ये जो इंडिया की है सबसे मजबूत मानी जा रही है, और कई सारे ऐसे प्लेयर्स में हैं जिसको देखकर जो यंग क्रिकेटर्स हैं वो सोच सकते हैं कि हमें इनकी तरह खेलना है या ऐसा बनना है। जैसे कि आपने बोला है अभी, वैसे तो आप हमारी जो टीम है वर्ल्ड कप में फर्स्ट टाइम ऐसा है, लग रहा है कि इतने जोर और इतने जोश से वो निकली है ना, पहले मैच से लेकर अभी तक आज उनका आखिरी मैच है। और इस मैच से मुझे लगता है कि वो पिछले जब उनका इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का लास्ट मैच हुआ था उसमें इंडिया टीम ने इतनी मेहनत करके और हार्डवर्क करके ऑस्ट्रेलिया टीम को हराया, उसके बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने कहीं ना कहीं लैग करके, और हम कहते हैं कि अपनी भाषा में बोलते हैं कि कहीं ना कहीं घसीट के वो फाइनल तक पहुंची है। लेकिन इस टाइम मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार ये हिस्ट्री बनेगी आफ्टर 2003 के बाद कि टीम इंडिया बिना हारे आज ये वर्ल्ड कप जीतेगी। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, हाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखिए जब एक वर्ल्ड कप होता है तो उसमें कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो बड़े प्लेयर्स की जगह जिनको लेने के लिए कहा जाता है, समझा जाता है। जैसे कि कोहली जब 2011 का वर्ल्ड कप था तब वो बहुत युवा थे, सचिन के लिए वो आखिरी था। ये वाला वर्ल्ड कप में कोहली हैं, यहाँ पर शुभमन गिल हैं, और कुछ जो छोटे प्लेयर्स आप देख रहे हैं, बच्चे हैं, ये हो सकता है किसी वर्ल्ड कप में आप इनको भी देखें। किसकी जगह लेना चाहेंगे अगर आप आगे चल के बड़े लेवल पर क्रिकेट खेले तो? जगह तो नहीं, बट विराट की तरह खेलना चाहेंगे। हाँ। In this studio. I'm just trying to tell her that Virat Kohli was in this studio a few years back, sitting right where you're sitting as a guest. Yeah. On one of our shows. ये इंटरेस्टिंग है बाबा, क्योंकि अब एक टाइम था जब सचिन होता था, कोहली होता था, लेकिन इस टीम में इतने प्लेयर ऐसा खेल रहे हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई कौन ऐसा प्लेयर है जो जबरदस्त यहाँ पर सबसे ज्यादा इंस्पायर आप दोनों को किसने किया है प्लेयर ने? विराट कोहली। आपको? मेरा हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या तो खेल ही नहीं रहा, दूसरा चेंज करो। मुझे अफसोस है कि वो खेल नहीं रहा, पर जब भी वो मेरा फेवरेट प्लेयर हार्दिक पांड्या ही है। वाह वाह वाह।
सचिन तेंदुलकर। वो तो है नहीं इस वर्ल्ड कप में। कुलदीप यादव। कुलदीप क्यों? एक्चुअली बाबा इतने सारे प्लेयर्स हैं और इतना अच्छा सब खेल रहे हैं। पहली बार मैं देख रही हूँ कि कोई ये नहीं कह रहा कि इनको ये सपोर्ट करेगा, उनको वो सपोर्ट करेगा। सब अपना नंबर 1 गेम खेल रहे हैं। आई थिंक कि बहुत मुश्किल है इनके लिए भी डिसाइड करना। और कादिमनी जो है आज नीला पहन के आई है टीम के सपोर्ट में। मैं नॉन एक्सपर्ट नॉन एक्सपर्ट। तो टॉस जो है वो होने जा रहा है और टॉस के बाद जो है हम चर्चा करेंगे कि जो टीम टॉस जीतती है। सवा भाई, टॉस क्या इंपॉर्टेंट है इस मैच में? उतना इंपॉर्टेंट है क्या? आपने दिखाए हैं पिछले 4 जो फाइनल्स हुआ है विश्व कप का, उसमें चारों फाइनल्स में टॉस जीतने वाली टीम ने पहले गेंदबाजी की है। तो अब जो मॉडर्न डे गेम है ना वो बदल सा गया है। अब दोनों टीमों का प्रयास यही रहता है जो विकेट की कंडीशन है उसको ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाए। आप पहले बैटिंग करना जो कहा जाता था कि पहले जो बैटिंग कर लेती है टीम उसको एडवांटेज होता है, वो सारी बातें अब खत्म हो गई हैं। आपको क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया क्या सोच रही होगी? पहले यहाँ पर रोहित शर्मा से निपटे या फिर बुमराह और शमी से निपटे? पहले मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया प्रेफर करेगी पहले बैटिंग करना, क्योंकि ये ड्राई विकेट है और अगर स्लो विकेट है तो वही उसी प्रकार का निर्णय मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया लेना पसंद करेगी। विजय भाई, कंडीशंस पे बहुत डिपेंड करता है। जैसे अभी कह रहे हैं कि अगर थोड़ा सा भी ड्राई विकेट होगा ना तो दोनों टीमें पहले बल्लेबाजी करना ज़्यादा पसंद करेंगी। और आपको उस चीज़ का इल्म इस बात से भी हो जाएगा कि टॉस जीते अगर आप टीम देखेंगे और अगर भारतीय टीम ने एक और स्पिनर अगर ऐड किया होगा तो फिर ये इस चीज़ का इंडिकेटर रहेगा कि भारतीय टीम क्या समझती है उस पिच के बारे में। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता है एंड दे आर बॉलिंग फर्स्ट। जी Vijay, what do you have to say about this decision? Pat Cummins deciding to bowl on this wicket. How do you see it panning out for them? I think मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत बाहर का भी प्रेशर है। पहले हम बात कर रहे थे कि पिच किस तरीके की मिलने वाली है, तो कहीं ये साफ पता चलता है कि कोई ऐसा पिच नहीं है जो वो जिस तरीके से उन्होंने पढ़ा है कि जैसे जैसे खेल चलेगा या बदलेगा नहीं। तो शायद इसीलिए। और एक और चीज़ आप याद रखिएगा, बॉम्बे में नहीं हुआ था, मुंबई में जो मैच था उसमें ड्यू नहीं आई थी। यहाँ पर हो सकता है कि वो फैक्टर भी बहुत जरूरी हो और इसलिए आप रनों का पीछा करना पसंद करेंगे। सभा भाई, अब तो खेल साफ है, रन बनाइए, 350 बनाइए। हाँ, पर इसका मतलब ये भी है कि ऑस्ट्रेलिया ने ये जो निर्णय लिया है इसका मतलब ये है कि विकेट उतना ड्राई नहीं जिस तरह से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे और विकेट ठोस है। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया प्रेफर कर रहा है यहाँ पर पहले बॉलिंग करना और प्रयास उनका यही होगा कि कम से कम 300 से अंदर 270-280 के करीब अगर वो भारत को रोक लेते हैं तभी उनके चांस बनेंगे। भारत के लिए बढ़िया मौका है। भारत इस प्रकार के कंडीशन में उनको अभ्यास है खेलने का, बड़ा स्कोर खड़ा करने का, तो ये आइडियल अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए। हाँ, तो इसका मतलब है कि हमारी बल्लेबाजी बहुत ज़्यादा तगड़ी है। उम्मीद यही की जाती है कि रोहित शर्मा जिस तरह की शुरुआत देते आ रहे हैं वही अप्रोच के साथ वही शुरुआत एक बार फिर से वो प्रदान करें। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, ये 3 हमारे जो टॉप ऑर्डर बैटर्स हैं, जो फॉर्म अभी तक उन्होंने विश्व कप में दिखाया है वही फॉर्म अगर आगे लेकर जाएंगे। पर जैसे कि मैंने कहा कि पहला स्पेल जो रहेगा मिचेल स्टार्क और जॉश हेजलवुड का, वो बहुत हद तक एक तरह से डिसाइड करता है कि आने वाला मैच का रुख किस तरफ जाने वाला है। Pushpaji, I also want to get your opinion on this. Will Rohit Sharma be satisfied with batting first on this wicket, or do you think he would also have bowled on this wicket? No, I think he would have been more than satisfied. Plus, everyone knows that Australia's main strength is their fast bowling. I think with that keeping in mind, they have taken the fielding. They have got 3 good fast bowlers. They will hope to in the first 10-12 over they will try to get 2-3 wickets. But if India doesn't lose wickets and they are 40, 50 or 60 for no loss or 1, I think it will be good toss to lose for Rohit. कैप्टन ने कहा है कि इस टीम का कैप्टनसी करना एक ड्रीम कम ट्रू है और उन्होंने कहा कि अच्छा होगा कि हम वो काम रहें और अपनी क्रिकेट खेलें। बाबा, जब आप कैप्टन को सुनते हैं ना तो वो सिर्फ कैप्टन नहीं होता, वो ड्रेसिंग रूम का माहौल को भी बोल रहा होता है, क्योंकि मौका कैप्टन को मिलने का मिलता है, बोलने का मिलता है, लेकिन वो कह ये रहा होता है कि वहाँ पर इस समय माहौल किस तरीके का है। अभी पाजी ने कहा कि 60 रन अगर होंगे और बिना किसी विकेट खोए, तो मुझे लगता है कि वो नहीं होने वाला। या तो विकेट गिरेगी और विकेट नहीं गिरी तो कम से कम 80 रन होंगे। रोहित अगर 10 ओवर खेल गए तो ये इस मैच की टोन सेट कर देंगे जो अब तक पूरे हमने इस वर्ल्ड कप के अंदर देखा है। तो उनका विकेट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। और किस तरीके से क्रिकेट बदली है पिछले कुछ सालों में, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने जब वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट किया है वो हमेशा बोर्ड पे रन लगाते थे और खासकर बड़े मैचों में, और फिर वहाँ से टर्म्स डिक्टेट करते थे। ये साफ बताता है कि अब उनकी सोच किस तरीके से हो गई है, या किसके खिलाफ आप खेल रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। मुझे अभी भी लगता है कि बड़े मैचों के अंदर अगर आप रन पहले बोर्ड पे लगा देते हैं तो वो एडवांटेज है, एडवांटेज इंडिया। It's interesting what Vijay bhai said. Do you feel that Australia are under more pressure in this final than India?
Well, they'll enjoy it. To be very honest, they'll say, "Okay, India, you take the lead. You are supposed to be. Everybody's saying you're supposed to win." So they're taking a backseat there, and they're enjoying, and they're good enough to pounce on any mistake made by the Indian side. Everybody thinks it's a cakewalk as far as this World Cup is concerned. I'll tell you just one thing: if India wins, and you talk to anybody who got a bit of an idea about cricket, they won't say it's an upset or it's a surprise. It's not. The only people who will be surprised will say, okay, the way India has played so far, we didn't win. That'll be the only surprise. Otherwise, Australia beating India, it's a normal thing. And all the Australian players have been talking about this. They are saying that they are willing to embrace the kind of pressure that they will go through. They are willing to step onto this ground and face the crowd support. I think that's why everybody is talking about shutting up the noise. And then the only way they can do that is by performance and nothing else. So I think Australia, they are a big challenge, but I think for them इंडिया हर्डल्स में ये यहाँ पे क्या कर रहे होंगे रोहित? ये कह रहे होंगे जब तक करते आ रहे हैं कि रिलैक्स होकर आप मैदान में उतरिए. इस समय रोहित और शुभमन गिल आएंगे ओपन करने के लिए. उनके ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है और जो रोल के बारे में रोहित ने बात की है एक बार फिर से उसको दोहराया जाता है. पर इस समय we are seeing the Air Force fly past there. These are spectacular visuals coming to us from Narendra Modi Stadium. We will of course show our viewers a little later from now. But Vijay, I'll have to ask you about these 22 men in the middle. The toss has happened. The match is about to start. Big final, big moment. How can they do the mundane and shut out the noise? Just tell us about how difficult is it to be in this moment? विजय भाई, आप हिंदी के दर्शकों को बताइए. आपने कहा कि आप इस तरह के हर्डल्स में आप रह चुके हैं, आपको एक्सपीरियंस है. क्या बोलते हैं आप? जी, आप जब इस तरीके के हर्डल में होते हैं ना, तो कई बार जरूरी नहीं है कि आप टैक्टिक्स के बारे में बात कर रहे हो कि हमें करना क्या है. कई बार आप उस चीज के बारे में बात करते हैं कि हम अब तक क्या करते हुए आए और हम कहां पर खड़े हुए हैं, और फिर आप एक आध खिलाड़ी को वहां सामने करके उनके बारे में ये बात करना चाहते हैं कि जो ये क्षण है ना, हम इसको किस तरीके से दोबारा जी सकते हैं. I really want to go across to our friends in the audience who are here and want to get their reaction on who their likely man of the match would be. आपके हिसाब से आज के मैच में वहाँ पे प्लेकार्ड रखे हैं, प्लेकार्ड इनके हाथ में प्लेकार्ड्स हैं. आपके हिसाब से who's going to be the man of the match? Please raise your placards and we'll try and get a vote on that. प्लेकार्ड देखिए everyone, please. वहाँ पे हो गए. आगे बढ़ाइए. रोहित, यहाँ पे देखिए. लोग, आपका प्लेयर कौन सा है? श्रेयस. This is a mixed crowd here, Baba. This is a mixed crowd here. A lot of people. कुलदीप है. श्रेयस लीजिए. हाँ, कुलदीप ले लीजिए. अरे कुलदीप का भी फैन है. इसने बोला था ना, अभी ने बोला था कुलदीप. ये कुलदीप का फैन है. ये रखो. जो फिर तो कुलदीप रखो तो जडेजा भी रखना चाहिए आपको. अच्छा, कुलदीप के लिए भी क्या कमाल का वर्ल्ड कप यहाँ पर रहा है बाबा? अगर जी, निश्चित रूप से. तो हाँ जी, उसामा. This is what this side of the room looks like. यहाँ पे राहुल, KL Rahul, फिर से KL Rahul, यहाँ पे भी KL Rahul. This is I must tell you, this is only because the two gentlemen, the wicket keepers union is sitting on this side. Is the reason why is the reason. I think इन लोगों ने बताया है इन लोगों को KL Rahul का नाम लेने के लिए. ये कंस्पिरेसी है. ये कंस्पिरेसी. ये सब विकेट कीपर एक हो गए करते समय. कंस्पिरेसी नहीं, हिंदी बोलना षड्यंत्र है. षड्यंत्र है. When you take a look at this side as well, a lot of people. Kuldeep Yadav has been one of those players who has been outstanding, and his contribution to this very team, I think you both will agree that he has been one of those standout performers for India in this World Cup. Gushpaji? Yes, he has been doing exceptional, no doubt. And I think about the man of the match, I think I have a feeling that Shubman Gill could be the man today.